Hey, welcome back to my channel Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So, welcome to all of you who are my young students and want to learn physics. We are back with a totally new chapter in the class 12 series, and the chapter name is electric potential and capacitance. But before start, I will request you to please like, share and subscribe my channel if you like my videos and you are interested in physics. Okay, so now we shall begin, and these are the contents which we are going to cover today, and these are electric potential, potential difference, formula for electric potential, equipotential surface, electric potential energy of a system of point charges, electric potential energy of a dipole, dielectric and electric polarization, capacitor and capacitance. So these are the topics which we are going to cover today. So be ready and we shall begin now. तो चलिए देखिए, हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल determines the flow of a point charge. The flow of a point charge Q from a higher potential surface to a lower potential surface. Let the potential this be V dash and this be V. So if V dash is greater than V, then obviously the point charge Q will move from V dash to V. अब मैं हिंदी में बता रहा हूं कि अगर हमने दो पोटेंशियल सरफेसेस ले लिए V डैश और V, ठीक है, और उनका पोटेंशियल सरफेसेस में कुछ डिफरेंस है कि V डैश जो है वो बड़ा है V से, तो हमेशा Q चार्ज हो V डैश से V पे ही मूव करेगा, यानी कि ये फ्लो ऑफ चार्ज बताता है. लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो पहले इंग्लिश में समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done. Electric potential is the work done in bringing a positive test charge Q naught from infinity to a point P, let's say P. Okay, so we can say that the potential difference, there is a potential difference between every 2 points. There is a potential difference between every 2 points if there is a uniform electric field. Do you agree that if this is a uniform electric field, then there is a potential difference? For example, here is a surface and here is a different surface. These are two plates having surfaces A1 and A2, but as there is a uniform electric field, definitely there is a potential difference between these two plates. So the point charge will move from higher potential to the lower potential. Okay, so what we will say that the potential difference V is the work done in moving a positive test charge Q naught from infinity to a definite point P. Okay, so work done in a moving test charge Q naught from infinity to a point charge Q without acceleration. Please note that without acceleration. Now मैं हिंदी में बताऊंगा कि पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, तो वहां पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जितना वर्क किया जा रहा है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर वहां तक लाने में, विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के. तो इसको हम मैथमेटिकली एक फॉर्मूले में लिखेंगे, तो V इक्वल्स टू W बाय Q नॉट. ठीक है. अब अगर ये पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है, तो ये Q नॉट की जगह Q हो जाएगा. ठीक है, समझ आई बात. नाउ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव इंटीग्रल है. क्या है? नेगेटिव इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है, यहाँ पे इंफिनिटी से हम कहाँ ला रहे हैं इसको, पॉइंट डिस्टेंट R. ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक, ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, dr. समझ में आ रही है बात कि हमारे को क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है
उसको इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर आर तक ले आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर। ओके, सो क्योंकि हम आर पे निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस एट आर विल बी लाइक दिस। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके हमने डेफिनेशन कर ली, ठीक है, कि इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट दैट विदाउट एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन कर रहा है जो, वो ये है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हो गए। अब इसकी एसआई यूनिट जो क्या होती है, एसआई यूनिट सिंपल है इसकी वोल्ट, ठीक है, समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट कहाँ से आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हमने देखा कि हमारे जो सरफेसेस हैं वो चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज मूव कर रहा है उन सरफेसेस में, तो इसका मतलब उन सरफेसेस में कुछ डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्या पता लगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमने ये समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट आया, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या आते हैं, ठीक है। अभी मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते जाना साथ साथ। नाउ अब हम करेंगे, चलो इससे पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूं आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है ml² t-3a-1। ml² t-3a-1 जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आपको यहाँ काम आएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। और अगर देखिए ऐसा यूनिट जो अगर सारी पूछे हैं तो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। डायपोल मोमेंट की मैंने आपको बताई थी, याद हो तो आपको, ठीक है। तो उसमें क्या था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो कूलम मीटर उसकी यूनिट थी, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट कूलम मीटर होती है, ठीक है। अब उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट का, तो वो आप कर लेना, आपका होमवर्क है वो, ठीक है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पे, तो वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आपके सरफेसेस हैं, ठीक है, हमने एज्यूम करते हैं कोई भी सरफेसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, तो हमने दो सरफेसेस अगर चुन लिए तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा, ठीक है, होगा ही होगा। और अब पोटेंशियल डिफरेंस कब नहीं होगा, अगर आप पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस कब नहीं होगा, तो वो तब नहीं होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। कैसे, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि E - dV/dr होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रख लेना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with the distance, rate of change of potential with distance is electric field, E - dV/dr। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो रेट क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो हो गया, तो इसका मतलब V क्या होगा, कांस्टेंट। भाई अगर वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, वैल्यू में चेंज जीरो है, तो वैल्यू भाई बराबर आ रही है, हर बार बराबर है, तो V कांस्टेंट आ गया। यहाँ से समझ आया? तो V जब कांस्टेंट होगा तो E जीरो होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द
potential difference between the 2 points in an electric field as the work done in bringing unit positive test charge। ठीक है, इस तरह से डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, आपकी आसानी के लिए। Work done in bringing a positive test charge, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दो पॉइंट के बीच में बता रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जितना वर्क डन करना पड़ गया एक चार्ज को लेके जाने में, वो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। बट ध्यान रखना कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का जो यूनिट होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो 1 होती है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, अगर चार्ज की कुछ क्वांटिटी है, लेट्स से 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और अगर उसको इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच के पॉइंट में, A और B के बीच में, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, वर्क डन। लेट्स से वर्क करना पड़ गया हमें W, ठीक है, और हमें डिस्टेंस है इनके बीच का R, तो R जो है यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है कि वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है Q, Q क्या है, इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो वर्क डन, अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम वर्क में इसको डिफाइन करते हैं, और यही जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तो हमारा क्या होता है कि V इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे जो इस तरह से लिख लीजिए कि E इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस dV बाय dr है ना, तो V इक्वल्स टू यहाँ से नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, V इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया और वर्क डन का ये हो गया। तो बहुत ही आसान दो हमारे फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में और वर्क डन के रिस्पेक्ट में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, तो इसके ऊपर एरो मत लगाना। ठीक है, एरो मत लगाना कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी ऐसा यूनिट वॉट होती है। समझ में आई? अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। देखिए आपका जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मूलेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारी वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला। ठीक है, और हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, देखो पहले V लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि हमारा क्या होता है, V इक्वल्स टू माइनस EdR, ये इंटीग्रल है dr। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
यहाँ पे देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगी। और dr का इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, r2 माइनस r1, यहाँ मान लेते हैं r2 और यहाँ मान लेते हैं r1, ठीक है। तो हमने जब इसको सोल्व करा, ठीक है, ये देखो लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो सोल्व करके मतलब जो भी आएगा हमारा इनका डिफरेंस मान लेते हैं वो r आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में r आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, देखिए याद रखिए कि फोर्स में आप कंफ्यूज होते हैं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद है ना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज मत होया करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज ले लेते हैं Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय r², इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या है, एक r और है, तो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कोई प्रॉब्लम इसमें, V equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R due to a point charge Q at a distance R, मतलब कि पॉइंट चार्ज Q से हमारा R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे 1/4 pi epsilon naught Q चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R। बहुत ही आसान फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला करते हैं, और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। पहला करते हैं, सॉरी दूसरा करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, दूसरा पेन ले लेते हैं, शॉर्ट डाइपोल, हाँ ठीक है। तो शॉर्ट डाइपोल से हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। तो हमारा डाइपोल यहाँ पे ले लेते हैं Q और माइनस Q, ये हमारे दो चार्जेस हैं जो कि डाइपोल बना रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा डाइपोल बन गया विद अ डिस्टेंस 12, विद अ डिस्टेंस 12। तो अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है एट अ पॉइंट P विच डिस्टेंस R from the center of this dipole, okay, let this distance be R from the center of this dipole। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R from the center of a dipole is 1/4 pi epsilon naught P by R², ठीक है। वेयर P क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, एनी चार्ज Q इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी, कूलम मीटर होती है, याद रख लेना, कूलम मीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट, तो हमारा ये सिंपल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एक्सिस, तो ये हमारा क्या था, एट एक्सिस। अब हम करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई हमारा पॉइंट है, वहां पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, वहां पे पोटेंशियल होता है 0, याद रख लेना 0 होता है, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज Q और इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से यहाँ पे देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो निकाला था, उसकी डायरेक्शन भी आई थी हमारी, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमारा जैसे कि निकाला था तो माइनस Q अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, पॉइंट चार्ज Q को, और प्लस Q इसको रिपेल कर रहा था, ठीक है। लेकिन प्लस Q का क्योंकि कम था और नेगेटिव का ज्यादा था तो ये अट्रैक्ट होएगा इधर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि हमारा इधर था पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q, यहाँ पे पॉजिटिव Q इसको ऐसे रिपेल कर रहा था और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो इधर जा रहा था,
यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा था और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन जो देखें हम, ठीक है, तो वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। बट वहीं अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की देखें डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। बट पोटेंशियल अगर देखें हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वो जीरो है। क्यों? क्योंकि हमारा प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू की वजह से यहाँ पे दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है और हमारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो रहा है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी है बट यहाँ पर हम डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे हम कि हम यहाँ पर सीख सकें क्या फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसके साथ ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है एट अ जनरल पॉइंट हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एट ए जनरल पॉइंट हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर और थीटा। याद रखना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो फर्स्ट जो होता है वो डिस्टेंस होता है और सेकंड होता है एंगल, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डिस्टेंस है आर, ठीक है, और ये हमारा चार्ज है क्यू और ये हमारा डिस्टेंस है आर, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे है वो थीटा है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसका भी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं जा रहे, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो ये याद रख लेना, ये एक फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट अ जनरल पॉइंट हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा। तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे अब, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। आ रहा है ना मजा या नहीं आ रहा, बोरिंग तो नहीं हो रहा? देखिए बहुत ही आसान है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, लेट्स से Q1 देन Q2 देन Q3 देन Q4, ये 4 चार्जेस हैं और भी कई सारे चार्जेस हैं। तो हम इन सब चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबका यहाँ पर क्या लेंगे, सुपरपोजिशन लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालेंगे, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालेंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, v इज द इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हम क्या है, हम मान लेते हैं कि जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगा के, ठीक है, सोल्व करके निकालेंगे। तो हमारा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के बाद कई सारे पॉइंट्स, लेट द टोटल चार्जेस बी Qn, ठीक है, लास्ट चार्ज भी Qn, तो हम यहाँ पर इंटीग्रल भी n तक करेंगे। तो हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, v इक्वल्स टू अलग अलग सबकी वजह से होगा, ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn। तो यहाँ पे समेशन साइन आएगा, i इक्वल्स टू 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qi बाय ri, ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा
Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 अप टू Qn/Rn। ये हमारा होएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसके हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से है तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दो चार्जेस ऊपर आ रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्ट में दो चार्जेस कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई है और दो आर जो है वो मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से होगा हमारा, ठीक है, फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो इसको हमने क्या करा, इन द फॉर्म ऑफ समेशन साइन लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको खोलोगे तो कुछ इस तरह से होएगा कि 1/4 एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये समेशन साइन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करोगे, ठीक है, आई में, तो Q1/R1। ठीक है, फिर यहाँ तो 1 है ही। अब इसको Q1/R1 को इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो Q1/R1², फिर प्लस में आ जाएगा Q1 Q2/R1 R2। ठीक है, फिर प्लस आएगा Q1 Q3 प्लस Q2 R3 अप टू Q1 डिवाइडेड बाय R1, सॉरी Q1 लास्ट में क्या आएगा, Q1 डिवाइडेड बाय R1 Rn, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, बस यहाँ तक खत्म नहीं होता, इसके बाद भी चलता रहेगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आई को रहेंगे 2। तो इस तरह से ये बहुत ही लंबा हो जाएगा हमारा, डिपेंडिंग अपॉन n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा, बट हमें इसके डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला करना है जो कि मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत आसान है फिजिक्स के, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जैसे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर जो सरफेसेस होते हैं उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से हम देखते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा आप तो आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि हमारे वो सरफेसेस जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जहां पर किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है और इसे हम कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, मतलब इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए आप। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप नोट डाउन करें तो वहां पे आपको पोटेंशियल जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी दिखेगी। पोटेंशियल की क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी होएगी या फिर फिक्स्ड वैल्यू होएगी। क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर V जो है हमेशा सेम ही मिलेगा आपको, ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब डिफरेंट चार्ज टाइप और चार्ज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली इक्विपोटेंशियल सरफेस की फिगर एंड कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, तो इसके आसपास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होगी। ठीक है, क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होगी जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और हर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, सेम ही डिस्टेंस d होगा। तो आप फिगर पे ये बस सोचना है कि यहाँ पर कम डिस्टेंस है और यहाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब अलग अलग डिस्टेंस होगा इन पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में। नहीं, यहाँ पर जो भी कंसेंट्रिक रिंग्स बनेगी अराउंड अ पॉइंट चार्ज Q वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज के लिए। और अगर मैं कहूँ कि हमारा डाइपोल है, फॉर एग्जांपल ये -Q एंड देन ये +Q, ये हमारा डाइपोल है, तो इसके अराउंड जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाने हैं
तो सबसे पहले हमें तो पता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे जा रही है, हमें ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे जाएंगी, -q टू +q, ठीक है, इस तरह से जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएगी ना। बट यहाँ पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर दिखाना हो तो इसका जो है अलग ही रूल होता है, ठीक है। वो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉइंट चार्ज में इस तरह से होती है। यहाँ पे सर्कल बनाएंगे हम ऐसे गोल गोल, क्योंकि मैंने पॉइंट चार्ज का बताया ना, इस तरह से हमारा सर्कल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से सर्कल में होएगा, तो इस तरह से हमारे सर्कल तो आएंगे। बट जैसे कि हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे, इन दोनों के मीडियन पॉइंट पे आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि -q और +q सेम क्वांटिटी के हैं। तो सेम क्वांटिटी के हैं, तो यहाँ पे अब ये दोनों जो है, जब इसका नेक्स्ट सर्कल आएगा तो वो ऐसे होएगा, कुछ ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड होएगा, और ये इस तरह से, ये होगा हमारा दो चार्ज कॉम्बिनेशन या इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बट आपको ये याद रखना है कि जिस तरह से हम इनके बीच में आ रहे हैं, तो इनके बीच का इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होएगा, तो याद रखना कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा होएगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होएगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होएगा वो ज़्यादा होएगा, ठीक है। ये ज़्यादा है और ये कम है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, थोड़ा कम होएगा, थोड़ा कम होएगा, यहाँ ज़्यादा होएगा। तो इस तरह से याद रखना कि जिस तरह से हम बीच में आते जाते हैं, तो हमारे जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो डिस्टेंस बिटवीन दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। बट जैसे हम दूर जाते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस कम होता है। तो ये पोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते हैं, यहाँ पे पास पास दिख ही रहे होंगे आपको, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पास होते हैं और यहाँ पे दूर दूर होते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा डिपेंड करता है कि कंडक्टर कैसा है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, देखो यहाँ नॉर्मल होगी ऐसे, ठीक है, होगी ना नॉर्मल। तो यहाँ पर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस उससे इस तरह से होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पे इस तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस क्या से होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और यहाँ पे कर्व है तो ये कर्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होगा, यहाँ पे कर्व है तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऐसे, ठीक है कि। और इन पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट पे चले जाइए आप, वहां पे हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा सरफेस है जहां पे आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये हर एक चार्ज के अकॉर्डिंग इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है। तो हम इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट करेंगे आज के वीडियो ट्यूटोरियल का, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इतना ही था बस। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
करेंगे हम। नाउ हमने क्या करा, एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज दे दिया, यानी कि कई सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ठीक है। इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वही है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका देखिए हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा मेन फोकस यहाँ पे डेरिवेशन का नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला U से डिनोट करते हैं, तो U इक्वल्स टू 1/4πε0, इस तरह से लिखना आप। और उसके बाद दो समेशन साइन आएंगे आपके, समेशन 2 आएंगे, ठीक है। फर्स्ट में I आएगा और सेकंड में J ग्रेटर देन 1, QI QJ RIJ, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये तो हो गया एक बड़ा फॉर्मूला जिसमें कि I जो है 1 to N है और J जो है वो भी 1 to N है, ठीक है। बट अगर मैं इसको आप शॉर्ट मतलब कि थोड़े कम चार्जेस लेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 और 2 लेंगे, ठीक है, दो चार्जेस हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपका देखिए नोट डाउन कर लीजिए कि ये Q1, मैं आपको फिगर के जब दिखाऊं तो ये Q1 और ये Q2, ठीक है, और इनका बीच का डिस्टेंस होगा R, ठीक है, और इसका सेंटर जो है वो O है। तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस जो कि R डिस्टेंस से सेपरेट हैं, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो का फॉर्मूला है वो है 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2 by R12, ठीक है। सेपरेशन यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, R की जगह R12 कर लिया, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया R12 और ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बट अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला 1/4πε0 समेशन I1 सेकंड समेशन J ग्रेटर देन 1 QI QJ by RIJ। अब यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट्स को सॉल्व करना आता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पे I जो है इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और J को फिक्स रहेंगे। और उसके बाद जैसे कि I मतलब कांस्टेंट रखेंगे तो J को इंक्रीज करते रहेंगे, तो दोनों ये चलेंगे साइड बाय साइड। तो इसके बहुत लंबा हो जाता है जब इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं तो फॉर्मूले को। तो ये मैंने आपका फॉर्मूला लिख दिया और ये आपका दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि हमारे सिस्टम में, हमारे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब हम आगे भी पढ़ेंगे जैसे पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो भी करेंगे हम। तो अभी देखिए थोड़ा एक समय रह गया है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आर डाइपोल। डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देखिए यहां पर हमें क्या है कि हमने डाइपोल ले लिया -q + q, ठीक है। तो देखिए इसकी रोटेशन भी होगी। अब रोटेशन होगी तो इंक्लिनेशन जो होगा इसका, फर्स्ट ले लेते हैं θ1 और सेकंड ले लेते हैं θ2। तो θ1 से चेंज होकर θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी U = -PE cos θ होता है,
ठीक है, माइनस पी ई कोस थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने थीटा 1 से थीटा 2 में चेंज करना है तो यहाँ पे ये नहीं होता, ये होता है यहाँ पर आपका, देखिए पी डॉट ई होता है आपका, ठीक है, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर हो जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हमारा कोस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि P कांस्टेंट होता है हमारा, जो भी चार्ज है Q उसको ले लेते हैं इंटू 2L, जो डिस्टेंस होता है उनको 2L ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं, फिर हम करते हैं कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, इस तरह से कर देते हैं। देखिए हमने फाइनल इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा 2 होगी, और पहले वैल्यू क्या थी, थीटा 1 थी, तो इस तरह से कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा करते हैं जब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम पहुंचते हैं किसी अनस्टेबल इंक्लिनेशन पे थीटा। अब आपको मैं बताऊंगा कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। यहाँ पे देखिए स्टेबल तब होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है कुछ इस तरह से इंक्लाइन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो हमारा थीटा भी क्या हो जाएगा इस केस में 0। बट अगर यही केस ऐसे होता कि प्लस क्यू यहाँ होता और माइनस क्यू यहाँ होता, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है सेम, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इस तरफ, तो थीटा कितना हो गया, पाई हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल, ये क्या हो गया अनस्टेबल, और ये क्या था स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये डिफरेंस है मेन, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, u इज टू माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोस थीटा यहाँ पे 1 माइनस 2, ये माइनस अंदर ले जाइए आप, तो पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इस तरह से भी कह सकते हैं आप, ठीक है। बट याद रखिए थीटा 1 पहले आएगा तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इस पार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारा वर्क डन जो होता है वो पी ई 1 माइनस कोस थीटा होता है, क्योंकि एक तरह से एनर्जी को वर्क डन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम से था तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 0 हो जाएगा अगर शुरुआत में स्टेबल था। बहुत आसान है, देखिए शुरुआत में हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो डायपोल मोमेंट था वो कुछ इस तरह से था कि माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हमारा कोस थीटा 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और कोस थीटा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, मान लीजिए 180 डिग्री हो जाए, बट हमें नहीं पता तो हमने इसको कोस थीटा रहने दिया, तो थीटा 1 जो हो गया वो यहाँ पे 1 हो गया, कोस 0 1 हो गया, और यहाँ पे कोस थीटा 2 मतलब वो हमारा अलग ही एंगल हो गया किसी और डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसे डायगोनली इंक्लाइन हो गया और उसका एंगल हो गया थीटा, तो हमने थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया उस केस में, यहाँ पे डायपोल मोमेंट P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस थीटा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोस 0 हो गया इसलिए 1 आ गया, बाकी ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। U की जगह मैंने W लिख दिया, वो सेम ही है। आप यहाँ पर एनर्जी लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप वर्क डन लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एक्चुअल में जितना वर्क डन कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क होगा, वो फोर्स की वजह से वर्क जो हुआ उस पर वो कंजर्व हो जाता है, ठीक है। किसमें कंजर्व हो जाता है, चाहे चार्ज हो, चाहे फिर चार्ज कॉम्बिनेशन हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो, तो वो सिस्टम में कंजर्व हो जाता है। उस सिस्टम की कंजर्व्ड एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, जो कंजर्व्ड एनर्जी होती है ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम, उसकी वजह से हमारे पास जो फोर्स लगता है तब वर्क जो होता है वो कंजर्व हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं।
और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स एंड फ्री एंड बाउंड चार्जेस। देखिए, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। देखिए, कंडक्टर जो होते हैं वो हमारे वो मटेरियल होते हैं जिसमें कि फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, और फ्री चार्ज कैरियर की वजह से कोई भी चार्ज को वो फ्रीली फ्लो करा सकते हैं अपने सरफेस पे, और इस तरह से वो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे फ्रीली मूव करा देते हैं, तो वो कंडक्टर हो जाते हैं। बट अगर हम इंसुलेटर कहते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, और अगर हम इंसुलेटर कहते हैं तो इसमें नो फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ऐसे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। अब फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, तो उससे क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगी चार्जेस की क्या नहीं होगी, कंडक्शन नहीं होगी। अब आता है हमारा बाउंड चार्जेस एंड फ्री चार्ज। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, मान लीजिए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एटम्स बहुत सारे हैं, ये एक मटेरियल है, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मैंने एक फॉइल ले लिया, उस एल्यूमिनियम फॉइल में करोड्स ऑफ एटम्स हैं, 1000 करोड़ एटम्स हैं। उन 1000 करोड़ एटम्स में क्या है, कुछ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो लेके जाएंगे, और कुछ बाउंड चार्जेस भी हैं। ठीक है, और वो बाउंड चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव आयंस। याद रखना कि पॉजिटिव आयंस एक तरह से बाउंड चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं, जो कि इस लैटिस में, ये एल्यूमिनियम फॉइल की लैटिस है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है और पॉजिटिव चार्ज आयंस भी हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आयंस, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, इसको थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा छोटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉजिटिव आयन चार्जेस जो लैटिस में फिक्स हैं, इस एल्यूमिनियम फॉइल के लैटिस है LATTICE, उसमें ये पॉजिटिव आयन चार्ज फिक्स है, तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये बाउंड चार्जेस हैं। ये चार्ज को कैरी नहीं करेंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाके चार्ज को क्या करेंगे, फ्लो करा रहे हैं। तो समझ में आया, इस तरह से होता है। अब इसी के बेस पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, रीजनिंग देनी होती है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्हीकल है, उस व्हीकल में अगर कुछ वेपराइजेशन वाला पार्ट है कि एक्सप्लोजिव है, ठीक है, तो एक्सप्लोजिव नहीं कहेंगे, मतलब कि कुछ इस तरह से फ्लेमेबल पार्टिकल है, फ्लेमेबल उसमें आइटम्स रखे हुए हैं कि उसमें अगर छोटी सी भी फायर लगी, ठीक है, तो वो पूरा जो है वो व्हीकल जो है एक्सप्लोड हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए उस व्हीकल में पेट्रोल है या डीजल भरा हुआ है, ठीक है, वो कैरी करके जा रहा है, बट उसमें क्या है, हम प्रोटेक्शन के लिए एक मेटेलिक वायर को उस व्हीकल से बांध देते हैं, मेटेलिक रोप होती है वो, और वो रोप जो है वो ग्राउंड को टच करती हुई जाती है, वो मेटेलिक रोप होती है। ठीक है, वो दिखती तो रोप जैसी है बट वो एक्चुअली मेटल की बनी होती है। तो उसमें होता क्या है, ये इसलिए किया जाता है, इस ट्रक से बांध रखी होती है, वो इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, ठीक है, जो इन टायर्स में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उस फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें क्या है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इसकी बॉटम लेयर में। तो वो बॉटम लेयर पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है हमारी व्हीकल में, वो इस फ्लेमेबल आइटम्स के पास ना जाए, पेट्रोल डीजल तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो फ्लेमेबल पार्ट है, पेट्रोल है, वो एक्सप्लोड हो जाएगा। और इसको इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ये चार्ज का जो है ग्राउंड में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही वायर क्या कर रही है कि इस चार्ज को ग्राउंड कर रही है। तो ये एक कंसेप्ट है
तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारे बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस का कंसेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट। अभी डाइलेक्ट्रिक करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है डाइलेक्ट्रिक, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डाइलेक्ट्रिक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, इंसुलेटर्स को अक्सर हम डाइलेक्ट्रिक कह देते हैं कि इंसुलेटर एक तरह से डाइलेक्ट्रिक्स हैं, बट यहाँ पे देख लेना स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, अब ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कि कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे केमिस्ट्री में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, हाइड्रोजन है, तो उसमें अलग अलग डाइपोल मोमेंट भी होता है, तो उसी वो डाइपोल मोमेंट की वजह से उसको डाइलेक्ट्रिक बोला गया है, ठीक है, क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, तो वो एक मतलब कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसमें कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसके चार्जेस है, मतलब कि उसका सेंटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो आपस में क्या है, अवे है, दूर दूर है, बट अगर वो डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर बीच में आ रहे हैं, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव कोइंसाइड करने की वजह से, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारा ऑक्सीजन है नेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव, और कार्बन क्या है पॉजिटिव, ठीक है, तो इनके जो दोनों के हमारा क्या है, दोनों के जो सेंटर है, नेगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव का सेंटर, वो कोइंसाइड कर रहा है एक ही पॉइंट पे, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब एक ही पॉइंट पे नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक, ऐसे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर डिफरेंस है, सेपरेशन है, तभी तो डाइपोल मोमेंट होगा ना। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से होगा। तो इसलिए दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट इज कि जिसमें कि डाइपोल मोमेंट होता है, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है, P हैज वैल्यू। तो और कुछ ऐसे होते हैं कि डाइपोल मोमेंट उसका जीरो होता है, ठीक है, और वेरी लेस, जीरो नहीं होता तो बहुत कम होता है। तो इस तरह के जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दूसरे काइंड के होते हैं। तो जो जिसमें कुछ फिक्स वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट की, उसको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये पोलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव का जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है, और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ये, ठीक है। अभी क्या है कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, हम इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो कि अभी तक नॉन पोलर था वो पोलर हो जाएगा। किस तरह से होएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो अभी तक कोइंसाइड कर रहे थे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इनमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा, उनमें कुछ सेपरेशन आ जाएगा, और इसी सेपरेशन के चलते हुए हमारे डाइपोल मोमेंट होगा, जो कि कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। याद रखना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इसी डाइपोल मोमेंट की वजह से जो कि अभी क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के लाने की वजह से, उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, कि हमने एक डाइपोल को पोलराइज कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग कर दिए, तो पोलराइज कर दिया, ठीक है, और इस फिनोमिना को पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिनोमिना क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमने इसमें मेन फिनोमिना में क्या इंड्यूस करा था, हमने इंड्यूस करा था डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करा था, तो हम कहेंगे पोलराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इट इज द
अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बोलना था, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मतलब डाइलेक्ट्रिक की जितनी भी वॉल्यूम है वो डिवाइड कर देंगे डायपोल मोमेंट से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, पी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पी क्या होगा, डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया पोलराइजेशन क्या होता है, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट 0 होता है एक में और दूसरे में कुछ फिक्स वैल्यू होते हैं, बट इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सेपरेशन बढ़ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के बीच में, जिसके चलते एक परमानेंट, मैंने आपको ये नहीं बताया कि परमानेंट क्या डायपोल मोमेंट बनता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक को तो परमानेंट डायपोल मोमेंट बनता है। ठीक है, और उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन को अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, डिफाइन करना हो, तो डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम इज क्या होता है, हमारा पोलराइजेशन। बट याद रखना यहाँ पर डायपोल मोमेंट वो है जो इंड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं जो पहले से था, वो जो कि इंड्यूस कराया है उसकी वैल्यू आएगी। तो ये सिंपल सा स्टेप है। अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब तक इतना ही। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।